ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਔਰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਐਸਪੀਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਗਏ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ 3 ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ BA, B.Ed, B.Tech ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ B.Ed ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 5 ਔਰ 6 ਤੇ ਜਾਓ, PR ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ SOP ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਵਲ 7 ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਵਲ 5 ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। प्रदीप जी मेरे नाल है, बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ प्रदीप जी। सत श्री अकाल। सब तो पहले मैं मेगा एजुकेशन फेयर बारे पूछना चाहूंगा। देखिए हम सितंबर मंथ में तकरीबन 9 सेमिनार्स लेके आ रहे हैं पूरे हरियाणा और पंजाब में, जिसमें एवरी सैटरडे हमारे हरियाणा में है और एवरी संडे हमने पंजाब के वखरा शहरों में रखे हैं जी। इसके अलावा इनमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, SPP नॉन SPP दोनों। अगर हम बात करें कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइना, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, वैनकूवर आइसलैंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैल्यू, क्वार्टलैंड पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा आपका सेल्ट क्रीक कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न ब्रिटिश कोलंबिया, NLC कॉलेज, सेंट लॉरेंस कॉलेज, आपका नियाग्रा, सेल्डन, जॉर्जियन, सेनेगा, कैम्ब्रियन कॉलेज, नॉर्थर्न कॉलेज, कॉलेज ऑफ द रॉकी, रेड रिवर, पार्कलैंड। इस तरह से मतलब मोस्टली SPP कितनी को हो जाएंगी SPP ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? तकरीबन हम 30-35 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का सेमिनार कर रहे हैं। वेरी गुड। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 30-35 ਸ਼ਹਿਰ, 30-35 ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ तीनों ही ऑप्शंस जिनमें मैं पहले बोला जी जी यूनिवर्सिटी और हम SPP मोस्टली ध्यान रखेंगे, यूनिवर्सिटीज और अपना क्या नाम है SPP। इसके अलावा अगर कोई SPP में रिजेक्शन है तो उसकी हम डेफिनेटली दे कैन कम और उसमें असेसमेंट करके देखते हैं कि अगर कुछ पॉसिबिलिटीज है डेफिनेटली वो जर्नल में फाइल लगा सकते हैं। बहुत रिजेक्शन होती है प्रदीप जी। मैं एक सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। SPP ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, TV ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫਾइल ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਰਨल ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए देखना पड़ेगा पहले तो रिजेक्शन में क्या रीजंस दिए हैं, उसके बाद अगर लगता है उसमें चांसेस है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग SOP के साथ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ। और इसके अलावा जो जनरल में की चेकलिस्ट के हिसाब से फंड्स भी दिखाने होंगे, एजुकेशन लोन लेटर दिखाना होगा और पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन लाइक ITR, इनकम सर्टिफिकेट, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, J फॉर्म, फर्द, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें लगा के। एक चीज नहीं समझ लगी प्रदीप जी, जो एक विद्यार्थी SPP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, जर्नल च मंग ले जाते हैं। की कारण की है? देखिए जो SPP स्टार्ट हुआ था, SPP बहुत फास्ट प्रोसेस है, उसके अंदर वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, ठीक है। सिर्फ एंड सिर्फ SOP प्लस में इसके अलावा SOP भी नहीं लगती एक तरह से। इसके अलावा सिर्फ एंड सिर्फ आपके जो फाइल, जो आपका फॉर्म भरे जाते हैं उसी के आधार पर वीजा लगता है। हाँ अगर किसी बच्चे का रिजेक्शन आता है तो फिर स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देके कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं एम्बेसी का ज्यादा रिजेक्शन किस आधार पे? सितंबर इनटेक दी मैं थोड़ी गल नहीं कर रहा, ओवरऑल मार्केट दा सिनेरियो की कह रहे हैं? देखिए अभी मैं इसी वीक में मोगा में सेमिनार में था, एक स्टूडेंट अपनी पूरी प्रोफाइल के साथ, स्टूडेंट और स्टूडेंट की फादर आया था जी। तो वो फाइल की फोटोकॉपी लेके आ गया
तो मैंने अगर उसकी फाइल देखी तो कैन यू बिलीव सर, उसमें फाइल का सिस्टम ही बेकार था। लाइक देखिए कि जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में एक चीज लिखी होती है कि आपके पास कितने खर्चे होने और कितने फंड्स अवेलेबल हैं। उसके जो खर्चे होने थे $28,000 के और उसके पास फंड्स अवेलेबल $10,000 के। हाउ इज इट पॉसिबल कि उस बच्चे का वीजा आएगा? दूसरा, एम्बेसी ने पूछा था कि लास्ट 10 ईयर में आपने क्या क्या एक्टिविटी की है, तो वो लिख रहा है, मतलब कंसल्टेंट जो फाइल में मैंने देखा कि भाई अगले 2015 से लेके 17 तक मैं ये कोर्स करूंगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। अरे उस फॉर्म में तो देखो, उसमें लिखा कि पीछे क्या किया है, फ्यूचर नहीं पूछ रहा, पीछे क्या किया है। तो कुछ तो ये रीजंस है कि हमारे जैसे महानुभाव वो फाइल को अगर अच्छे तरीके से नहीं देखते या अच्छी तरह से चेक नहीं करते या एक्सपर्टीज के साथ नहीं चलती तो रिजेक्शंस बच्चे का आ जाता है। दूसरा, रिलेवेंट कोर्स, कहीं ना कहीं कोर्स की भी ऐसी चीज होती है कि बच्चे को ऐसा कोर्स दे देते हैं कि जिसके कारण रिफ्यूजल आती है। रिलेवेंट कोर्स, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस, फाइनेंशियल का मतलब कि जैसे मैंने बताया कि $28,000 लगने हैं, $10,000 अवेलेबल दिखा रखे हैं। और तीसरा, कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, लाइक बच्चे का स्कोर कम है, 6 बैंड आ गया, उसको पीजी में आप डाल रहे हो, परसेंटेज उसकी लो है, तो कहीं ना कहीं ये 3-4 रीजन है जिसके कारण बच्चे की रिफ्यूजल्स आ जाती है। जी, हुण विद्यार्थी वाल आने जिहड़े विद्यार्थी ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके विदेश जाने का सुपना लै रहे हैं, बड़ियां हर्डल्स आउंदियां ने, बड़ा डराया धमकाया जाता है, एजुकेशन लुकाउण की गल की जाती है, विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है। एक्चुअल वड्डी समस्या मार्केट की जिहड़ी यही है कि विद्यार्थी नूं विचारे नूं सच नहीं पता लगता कि कानून एक्चुअल की हैगा, कि कंसलटेंट्स किते झूठ तो नहीं बोल रहा, उहदा किते जालसाजी तो नहीं पैसे ठगण दी। बड़े सारे अहम सवाल खड़े होंदे ने ज़हन दे विच। सो तुहाडे अज सवालों के जवाब देने वास्ते असीं इस मंच ते हाज़र होए हां। पहला तो मैं उन्हां विद्यार्थियों की गल करां बीटेक जिन्हां ने तुहानूं भी स्पैशली मेरे ख्याल 3-4 एजुकेशन फेयर दे विच गल कीती, और मेरे स्पैशली पर्सनल फेसबुक के उपर, देश प्रदेश लाइव के फेसबुक के उपर बीटेक वाले बच्चे अक्सर बेचारे पुछते हैं जी मेरे इन्ने परसेंटेज घट गए, इन्नियां सप्लीज सीगियां, मैं कैनेडा जाना सी, आस्ट्रेलिया जाना सी, बड़ा कुछ अहम सवाल होंदे ने जिहड़े तुहाडे नाल साझे करांगे। बीटेक जिहड़ा एक बहुत पेचीदा मामला इस वक्त बनया होया प्रवास के मामले खास तौर पर, इत्थे जॉब नहीं मिलती, परसेंटेज घट जाती है, सप्लीज आ जांदियां ने, उन्हां लई पहला कैनेडा वाल असीं गल करिए, किन्नी कु कंपार्टमेंट्स सप्लियां दे नाल जिहड़ी सक्सैस रेट है वो कैनेडा का एसपीपी दे विच पाया जा सकता है। देखिए, पर्टिकुलर हर एक एसपीपी के अंदर 43 कॉलेजेस हैं, हर पर्टिकुलर कॉलेज का एजुकेशन प्रोवाइडर्स का अपना एंट्री क्राइटेरिया है। कुछ तो 8 से ज्यादा री नहीं लेते, लाइक 8 से ज्यादा अगर उसकी कंपार्टमेंट्स हैं, उससे ज्यादा अगर एडमिशन में गल कर रहा, एडमिशन ठीक है, असं मानते हैं कि वक्-वक् हर एक दा अपना क्राइटेरिया में तुसीं गल कीती। एम्बेसी किवें लैंदी है इस चीज में? एम्बेसी देखती है, और देखिए अगर आपने एक बच्चे की 2013 में या 14 में पास होना और वो 2015 या 16 में पास हो रहा है तो कहीं ना कहीं एम्बेसी इस चीज को लिखती है। अब जो फर्स्ट सेम है, फर्स्ट सेम अगर वो अब मतलब फर्स्ट सेम जो उसने 2009 में या 10 में करना चाहिए था, अगर वो 2013 या 14 में कर रहा है तो उस बच्चे का वीजा कहां से लगेगा? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बीटेक कर रहे हैं या डिप्लोमास कर रहे हैं, प्लीज अपना जो सेमेस्टर वाइज जो भी है उसी टाइम पे उसको कंप्लीट करें। अगर आपकी 2010 में कंप्लीट होना है फर्स्ट सेम तो कोशिश करो 10 में ही उसको कंप्लीट करो, ठीक है। री आ गई तो आपको एक उसी सेमेस्टर में नेक्स्ट मतलब उसके 3 महीने 4 महीने बाद जो चांस मिला उसको प्रूव कर लो, अपने को पास कर लो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि चलते जा रहे हैं फर्स्ट सेम की उसकी चलती जा रही है और वो फाइनल में पहुंच गए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, और एम्बेसी ये सोचती है कि ये इंडिया में तो पढ़ नहीं पा रहा, बाहर जाके कैसे पढ़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू हार्ड वर्क, अपना हार्ड वर्क करो और अपना टाइम टू टाइम अपनी रीकंप्लीट करो ताकि आपका भविष्य बने। परसेंटेज कितना मैटर करती है? विद्यार्थी ने भी सवाल सानू पूछा है कि बहुत वेरीएशन आती है, साड़ी 45-50% भी आ गए, 55 तो 60 भी आ गए, 70 तो 80 आ गए। एक विद्यार्थी दी सप्लीज आ गई 6 दी 6 निकल गई, परसेंटेज बहुत अच्छी है 70 तो 80%, उन्होंने तुसीं अच्छी प्रोफाइल मानते हो। एक विद्यार्थी दी सप्लीज घट सी बट परसेंटेज बहुत लो है। देखिए यहाँ पे ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एक मैटर करता है। जिस बच्चे की पहले री आई थी, री आने के बाद उसने दोबारा पास आउट हो गया और अच्छी परसेंटेज के साथ पास आउट हो गया, तो आप बच्चे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई वो उस टाइम री क्यों आई थी और अब मैं अच्छा परफॉर्म कैसे कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर वो आईएलटीएस में भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लाइक 6 बैंड की रिक्वायरमेंट और 6.5, 7 और 8 बैंड ले लेता है, तो ऐसे बच्चे का वीजा 100% आने के चांसेस होते हैं। और एक बच्चे की परसेंटेज कम है तो कहीं ना कहीं उसका तो डाउट है, क्योंकि एसपीपी के अंदर 3-4 चीजें मैटर करती है कि एक तो आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल 50% के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो अंडर एसपीपी है, कोई 55 भी मांगती है, कोई 60 भी मांगती है, कोई 65 भी मांगती है। हर एक कॉलेज का एजुकेशन प्रोवाइडर का अपना अपना एंट्री क्राइटेरिया है। सेकेंडली, मेन जो सब्जेक्ट्स है
वो हमेशा मैटर करते हैं। एक बच्चे के पास सपोज करो कि एक बच्चा बीटेक है, बीटेक करने के बाद वो टूल एंड डिजाइन कोर्स करने जा रहा है और उसी कोर्स की उसकी परसेंटेज कम हो जो उसने पढ़ा हो। मैं भी यही सवाल पूछ रहे सी अगला कि जिस आधार ते तुसी जेड़ा कोर्स अगे रेलेवेंसी लेने जा रहे हो वो सब्जेक्ट किहो जिहा होना चाहिए, कितना कुछ उसमें अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए और उसको स्ट्रेंथ एरिया दिखाना चाहिए। देखिए जी मेरे पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स है, मेरा इसी सब्जेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं ये करना चाहता हूं और मेरा ये आप परसेंटेज देख सकते हो। अच्छा ये भी हो सकता है प्रदीप जी कि एक कैंडीडेट ने मान लो एग्जांपल लेने भी 4 सब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਨੇ, ਇੱਕ 55, ਇੱਕ 60, ਇੱਕ 65 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ 55 ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ 65% वाला ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 55 वाले ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ रेलेवेंसी ਦੇ आधार ਤੇ कोर्स ले। देखिए जो रिफ्यूजल लेटर आता है उसमें तो कहीं इस तरह से एक्सप्लेन नहीं होता, वो तो सिर्फ एक जगह टिक करता है। केस नोट करा के कभी ऐसी चीजें सामने आई? हाँ डेफिनेटली वी कैन सी, ये देख सकते हैं, बट कोशिश यही करो, यहाँ पे यही मैटर करता है कि जो आपकी जो एक वीजा कंसल्टेंट है या एक काउंसलर है वो ये सारी चीजें देख के सारे की सारी सेमेस्टर वाइज देख के प्लस में पूरी की पूरी मतलब फर्स्ट सेम से लेके लास्ट तक सारी चीज देख के और तब पर्टिकुलर अगर कोर्स बच्चे को सजेस्ट करे जिसमें उसकी स्ट्रेंथ है तो उसके वीजा के चांसेस रहेंगे। जी एक ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੈਸਟਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੈਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਪੀ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਐਸਪੀਪੀ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। जी देखिए हमारे पास मोस्टली एसपीपी और नॉन एसपीपी की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आ रहे हैं जिसमें जैसे मैंने पहले बताया था यूनिवर्सिटी ऑफ रिजाइनिया, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी, VIU, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैल्यू, KPU, सेल क्रीक, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न ब्रिटिश कोलंबिया, NLC, सेंट लॉरेंस, नियाग्रा, सेरिडन, जॉर्जियन, सेनेका, कैम्ब्रियन, नॉर्थर्न कॉलेज, कॉलेज ऑफ द रॉकी, आपका रेड रिवर, पार्कलैंड कॉलेज, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। इसके अलावा जो शहर हैं जिसमें हम ये कर रहे हैं, 5th को हमारा हरियाणा में यमुनानगर में है, इसके बाद 6th का जलंधर में है, 12 का अंबाला, 13 का अमृतसर, 19 का कुरुक्षेत्र, 20 का लुधियाना, 26 का करनाल, 27 का पटियाला और 3 अक्टूबर का कैथल। एक प्रदीप जी बड़ा सवाल कनाडा ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਪਰ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ, BA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ BTech ਕਰ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੀ BTech ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, B.Ed ਕਰ ਲਓ। B.Ed ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। BA ਕੀਤੀ ਜਾਂ BTech ਕੀਤੀ, ਫਿਰ B.Ed ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, MA ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ? देखिए एम्बेसी आज की डेट में जो कनाडा है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे US है, वो GT स्टूडेंट देखती है, जिसका मतलब जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। पहली बात तो आपकी जो स्टडी है, स्टडी के बाद आपका गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप है तो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो मोस्टली सेमिनार्स में भी हमें या पर्टिकुलर ऑफिसेज में जो स्टूडेंट्स मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि बच्चे ने BA कर ली, BA के बाद MA हिंदी कर लेते हैं, MA पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं, MA हिस्ट्री कर लेते हैं, तो मतलब ये कहीं रिलेवेंसी नहीं बनती है। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए बच्चे को जाना, सपना तो उसका बाहर जाने का, लेकिन उससे रिलेटेड वो कोर्स नहीं कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप सभी को सजेशन है जो अभी +2 में है या अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में है, तो प्लीज अगर आपका अब्रॉड का सपना है, बाहर का सपना है, तो प्रोफेशनल कोर्सेज करिए। आप डिप्लोमा करिए या डिग्री करिए, जैसे BBA है, BTech में IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इस टाइप के कोर्सेज करिए जिससे कि आगे आपका स्कोप हो। एक बच्चा क्या करता है कि BA करके अंडरग्रेजुएट एनटीटी प्रोग्राम कर लेता है या B.Ed कर लेता है, B.Ed करके फिर MA इंग्लिश करने लग जाता है, तो ऐसे बच्चों का भविष्य नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस एम्बेसी देखती है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स हो और उसकी मतलब प्रीवियस स्टडी और फर्दर स्टडी कहीं ना कहीं मैच करती है। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਰਰੀਲੇਵੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BA ਕੀਤੀ, B.Ed ਕੀਤੀ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਸਟੱਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ
ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲਾस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर उन्हें करना चाहिए, मतलब उसकी कोर्स उन्हें किवें सिलेक्ट करना चाहिए है? बात वही आती है कि एम्बेसी यही देखना चाहती है कि उसकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है और फर्दर वो क्या करना चाहता है। कोशिश तो यही कि जो उसकी लास्ट एजुकेशन है रिलेटेड उसी से भेजा जाए आगे, लास्ट क्वालिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फंसता है कि कई बार बच्चों की इरिलेवेंट एजुकेशन है तो एजेंट्स क्या करेंगे, पुरानी एजुकेशन छिपा देते हैं, नकली वर्क एक्सपीरियंस लगा देते हैं, तो वहां भी बच्चा जाके फंसता। कल इंटरव्यू आता है, कोई भी बात होती है, वेरिफिकेशन होती है, तो जेन्युइन और नकली तो नकली है, तो वहां के बच्चा फंसता है, बच्चे का $1-2 लाख रुपया खराब भी हो जाता है। क्योंकि कनाडा की बात करें, कनाडा में GIC भी एडवांस है और उसके अलावा ट्यूशन फीस भी एडवांस है। आज 50 के रेट से गई है, कल वो 47-48 के रेट से वापस आएगी, तो 60-70 हजार रुपए तो यही हो गए। 8600 रुपए मेडिकल, उसका भी एम्बेसी फीस भी है, फिर 4000-5000 रुपए का उसका क्या नाम है मेडिकल का, तो लाख रुपए फाइनेंशियली। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे कंसल्टेंट मैटर करता है कि आप किस टाइप की आपकी एजुकेशन है, उससे रिलेटेड अगर फर्दर भेजा जाए तो ज्यादा बेटर है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, BA B.Ed B.Tech BSc ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਲੈਵਲ ਦੀ 65000 ਦੀ ਜੌਬ 55 ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 5 ਔਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਵਲ 5 ਔਰ 6 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, कि एम्बेसी का जो सवाल है उठेगा कि तुसी ग्रेजुएशन करने तो बाद दोबारा लेवल 5 और 6 चूज किया था, विद्यार्थी का जवाब की होगा? देखिए मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा, जो कंसल्टेंट ग्रेजुएट बच्चे को लेवल 5 और 6 भेजता है वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। रॉन्ग प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि उसमें बच्चे के रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि एक बच्चे ने जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद अगर वो इतना ऊपर जाके नीचे जाएगा, मतलब 5वीं पौड़ी से नीचे जाएगा, पहली पौड़ी पे जाएगा, तो उसका वीजा तो आएगा। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब ये सी कि पंजाब हरियाणा ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ प्रैक्टिकल नहीं है, ਅਸੀਂ SOP च लिख के लाने हैं कि बच्चा इतना ट्रेंड नहीं। चांसेस कितने हैं मुझे ये बताइए? मेरे ऑफिस में रोज के 10 बच्चे ऐसे विजिट करते हैं जिन्होंने 5.5 या 6 पेन लेके मतलब बैचलर्स करके और वो डिप्लोमाज में जा रहे हैं, उनके रिजेक्शन आज की डेट में एक कंसल्टेंट के कम से कम 10 रिजेक्ट किए हुए बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। तो अगर वीजा लगने होते तो उनके क्यों नहीं लगे? देखिए एम्बेसी यहाँ देखना चाहती है एक बच्चा ग्रेजुएट है आगे फर्दर स्टडी करे, ठीक है, या फिर कुछ कंडीशन हो, कुछ सिचुएशन ऐसी हो जिस पे ये रहा जाए कि हाँ वास्तव में बच्चे को या वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई किया जाए, लेकिन वो कंडीशंस कम होती हैं। या कहीं ना कहीं एम्बेसी ये चीज देखती है, यहाँ पे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है रॉन्ग प्रैक्टिस के कारण कि बच्चे को मिसगाइड किया जा रहा है या बच्चा खुद मिसगाइड होना चाहता है। बहुत कम चांस है सर, बहुत कम चांस है। मैं ये नहीं कहता कि सबके रिजेक्शन आते हैं। बच्चा फंस गया दो पासे, एक पासे तुसी गल कीती, होर भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स करते हैं कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। कुछ कहते हैं जी इसी मंच तक ऐसे पूछते हैं उन्होंने कि जी ग्रेजुएशन वाला बच्चा SOP च लिखे कि मेरे जी पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल नहीं है, मैं हुण दोबारा प्रैक्टिकल करन जा रहा है, बच्चा कि नहीं बनेगा? देखिए एम्बेसी की चेकलिस्ट उठाओ, ठीक है, आप एम्बेसी की साइट्स पे जाओ, एम्बेसी कहती है कि आप एक रिलेवेंट कोर्स के लिए जाए, ठीक है। यहाँ पे तो मैं अगेन बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के, मैं ये नहीं कहता वीजा रिजेक्ट हो गया, बट मैं बोलता हूँ कि मैक्स स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होंगे ऐसी स्टेज पे। एम्बेसी के पास बहुत अच्छी प्रोफाइल्स भी आती है। मुझे बताइए 100 बच्चे हैं कि एम्बेसी में फाइल डली हुई है, कुछ बच्चे ऐसे जो रिलेवेंट कोर्स और हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब उसकी जो एजुकेशन इंडिया में है उससे आगे जा रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या नाम है ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके और लो कोर्स में जा रहे हैं लेवल 5 और 6 में। तो एम्बेसी पहले वीजा किसको? मेरा दोनों ही कंसल्टेंट्स में सवाल है, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब भी पेंडिंग रखूंगा। ऐसा कितना ही क्यों जाता है ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ 7 8 9 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ खिंच के क्यों लाया जाता है? देखिए मेरी तो कोशिश ये होती है जो बच्चा ग्रेजुएट है उसको लेवल 7 कम से कम भेज देते हैं, ठीक है। अब ऐसे दूसरे क्यों करते हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि उसका बैंड स्कोर कम हो सकता है स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ना चाहता हो, लेकिन मैं अगेन बताना चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट्स ये लगा लो कि आगे कुआं है पीछे घेरा है, वो कुएं में गिरने जा रहे हैं ऐसे बच्चे। जो बच्चे हायर एजुकेशन इंडिया में करके और लो कोर्स करने जाते हैं तो उसके चांसेस कम होते हैं। कनाडा ਤੇ न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ 6-7 ਦੇ 7 ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ BA ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਰਲ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਾਈ +2 ਹੈ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ है पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ, क्यों की जाती है? देखिए सर, मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं बड़ा हर्ट होता हूँ ऐसी चीज देख के। और ट्रेड एजेंट्स नहीं है प्रदीप जी, की गल है कुछ लोगों को है ना, मतलब वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इन्हीं लोगों के कारण ये मतलब जो फील्ड है वो बदनाम है। जब आपके सामने अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है आपका बिजनेस शुरू में स्लो चले, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि शताब्दी से ज्यादा दौड़ेगा अगर आप अच्छे बच्चों को भेजोगे तो, मतलब अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो। लेकिन कुछ बच्चों को, कुछ एजेंट्स का एम ही ये है कि भाई उसको सिर्फ पैसे लेने हैं, ठीक है, कैसे नहीं कैसे करके उसे पैसे निकाल लेने हैं। तो सर मैं कुछ नहीं कह सकता है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ समझना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस टीवी के माध्यम से, यही बोल सकता हूँ कि हम किसी एजेंट्स को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम से कम आपको तो बोल सकते हैं, समझना चाहिए। आप तो समझो कम से कम ऐसा, जब आपको पता है, आपका हार्ट भी जानता है, सबका दिल जानता है कि ये चीज गलत होने वाली है, लेकिन आप फिर भी क्यों मिसगाइड हो जाते हो? लड़के तो लड़कियां लिए एक सवाल जिन्हों के विआह हो चुके हैं, विआह हो गए, मैं नहीं कह रहा कि विदेश जाने का सुपना तोड़ देना चाहिए, विआह तो बाद भी जाग पैंदा, कई बारी पति प्रैशराइज कर लेंदा जी ਆਪਾਂ विदेश चलीए, कई बारी पत्नी प्रैशराइज कर लेंदी है। पढ़ाई छड्डी ਨੂੰ 3-4 साल हो गए, सुपना लेंदे ने, फिर अपने डॉक्यूमेंट जाके किसी कंसल्टेंट्स को जाते हैं, राय फिर वही वक्-वक् तरह की। तुसी की कहना चाहते हो? देखिए, मैं अभी मेगा के उसमें, क्या नाम है, मोगा के फेयर में था, उसमें मेरे को कम से कम 4-5 लड़कियां ऐसी मिली। होता क्या है कि आप एम्बेसी की साइट्स पे जाओगे, अगेन वही चीजें आती हैं कि स्टूडेंट्स क्या करता है कि पहले बात तो हमारे कल्चर में क्या होता है कि गर्ल्स, लड़की की जल्दी शादी कर देते हैं, लाइक वो ग्रेजुएशन कर रही है, वो कर रही है, इन मीन टाइम उसकी मैरिज कर देते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, चाहे तो उसकी कंप्लीट पढ़ाई कराओ, उसके बाद उसकी मैरिज करो, या अगर वो पढ़ रही है तो अगर उसकी शादी कर भी रहे है तो उसकी पढ़ाई ना छुड़वाओ, ठीक है। तो लड़कियां क्या करती है, लड़का क्या करते हैं कि शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके बाद 3-4 साल बाद, मतलब जब मैटरनिटी लीव से आ जाते हैं, सोनू मोनू हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि चलो जी अब उठ के चलते हैं, पढ़ने, मतलब पढ़ने जाते हैं। एम्बेसी ऐसे स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि अब क्यों। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे स्टूडेंट्स कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहो, आगे फर्दर स्टडी करते रहो या जॉब करते रहो। आपकी मैरिज होगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप मतलब फैमिली प्लान भी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तो ऐसा होता है जिस दौरान आप जॉब कर सकते हो। हाँ, 7वां 8वां 9वां महीना या इसके बाद मैरिज, मतलब बच्चा होने के 3-4 महीने तक हाँ छुट्टी चाहिए, 6 महीने 7 महीने के, लेकिन उसके बाद अगर आपका अब्रॉड का ही सपना है तो प्लीज कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करो या जॉब करो। मैटरनिटी लीव के लेके आप अपनी जॉब थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर अपनी नौकरी स्टार्ट कर दो। तो एम्बेसी ऐसे बच्चों को वीजा देगी, लेकिन ये 3-4 साल अगर आपने कुछ किया ही नहीं और उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं जाऊं, तो ऐसे बच्चों के वीजा नहीं आने। थैंक यू जी। काफ़ी सारे सवाल अज करते सी फेसबुक ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਨਿਊ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਔਨ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਚਲते चलते मिलिए कुछ स्टूडेंट से जो वेस्टर्न ओवरसीज से वीजा लगवा चुके हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सुशील कुमार है ਤੇ मैं जंसोई पिंड ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਬਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫੇਕ ਸੀਗਾ। तो बिल्कुल टोटली फेक होने के कारण मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हुई कि मतलब कि पूरा टोटली मेरा जो ऑफर लेटर सीगा वो फेक आया। तो एक दिन मैं घर बैठे बैठे इदा ही प्रोग्राम देख रहा सी जो कि मतलब मैंने बहुत अच्छा लगा तो मैंने बहुत ज़्यादा उहदे तो मतलब कि नॉलेज प्रोवाइड हुई। तो उस नॉलेज के जरिए मैं कॉन्टैक्ट नंबर जोड़े सीगे उहदे तो मैं कॉल की तो उन्होंने मतलब कि प्रदीप सर सीगे उन्होंने अटेंड की कॉल। तो जी मैं उन्होंने मतलब कि जो अपनी फाइल लगवाई उन्होंने मैंने इन्ना अच्छा रिस्पॉन्स दिता कि
मतलब कि उन्होंने जो अपनी पर्सनली लैके उन्होंने मेरी फाइल चैक की, कभी इन्होंने अपने स्टाफ दे नहीं छड्डिया, किधरे दे नहीं छड्डिया। पूरी फाइल चैक होने तो बाद उन्होंने खुद पर्सनली फाइल लेंदे सीगे। उस तो बाद उन्होंने खुद फाइल नूं चैक करना, एक एक चीज़ नूं मिस्टेक करनी, उन्होंने दसना कि एवें तुसीं अपनी फाइल नूं मतलब कि इत्थों दी तुहाडी गलती है, तुसीं इहनूं दुबारा सही करो। तो उन्होंने कारण अज मतलब कि मेरा वीज़ा सक्सैस हो चुका है आस्ट्रेलिया। मेरी हुण 12 सैप्टेंबर नूं मेरी फ्लाइट है। तो मैं सारे नूं सुजैसट करांगा, अपने दोस्त नूं भी सुजैसट करांगा जिन्हें मेरे नाल फाइल लाई सी, उहदा अज तक वीज़ा नहीं आया, जिन्हें दूसरे इंस्टीट्यूट तो लाई सीगी। मेरा वीज़ा भी आ गया, फ्लाइट भी बुक हो गई, सब कुछ हो गया। मैं 12 सैप्टेंबर नूं जाना है। तो उन्हें मैं सुजैसट करांगी तू भी एक बार मतलब कि प्रदीप सर को वैस्टर्न ओवरसीज़ को आके देख ते ट्राई कर, तो तैनूं खुद नूं एक्सपीरियंस गेन होएगा कि तेनों इस जगह आना चाहिए सीगा, ते ताई तेनों मतलब कि हुण अच्छा राह मिल गया मेरे थ्रू, तो तू जा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरचरण सिंह है, मैं इस्माइलाबाद तो हाँ। मैं अपनी +2 करन तो बाद आईलैट्स की वैस्टर्न ओवरसीज़ तो की, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की आईलैट्स भी। तो उस तो बाद मैं अपना वीज़ा भी इन्हों तो लवाया। मैनू वीज़ा लवाने के प्रोसैस भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बिना किसी दिक्कत तो मेरा 2 हफ्तियां के अंदर वीज़ा आ गया। तो जो भी मैनू कभी लोड़ पई वैस्टर्न ओवरसीज़ ऑफिस मैं कॉल की, इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की। सो मैं तो यही मैसेज देना चाहना भी मेरे जिन्ने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं भी यही कहना चाहना भी एक बारी जरूर ऑफिस विजिट करो तो इन्हों तो ही वीज़ा लगवाओ। थैंक यू। My name is Akash and I am from Chandigarh. I have got 6 band in IELTS and मैंने कई जगह से कंसल्ट किया वीज़ा से रिगार्डिंग, और मेरे को एक अच्छा मिला हुआ है वेस्टर्न ओवरसीज़ जिन्होंने मेरी बहुत डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प की, मुझे एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड की, जिससे आज मेरा वीज़ा आ चुका है और विद इन 7 डेज़। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मेरे पेरेंट्स उनसे सेटिस्फाइड रहे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और उन्होंने मुझे कहा कि वेस्टर्न ओवरसीज़ है बेस्ट। एंड मेरी फ़्लाइट 18 सितंबर है एंड मैंने न्यूजीलैंड के लिए फ़ाइल मेरी आई है और मैं बहुत इस बात से हैप्पी हूँ, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम सुरिंदरपाल सिंह है, मैं पटियाला तो हाँ। मैं वैस्टर्न ओवरसीज़ तो आइल्स की है और मैं 6.5 बैंड्स अचीव किए हैं। सब तो पहली गल है कि अपनी लाइफ है आप करियर बनाना अपना, तो हमेशा अच्छे इंस्टीट्यूट तो जाओ। मैं अपनी लाइफ से बड़े इंस्टीट्यूट से गया, सारे चंडीगढ़ हर एक जगह चेक किया, मगर जो सैटिस्फैक्शन मैनू इतने वैस्टर्न ओवरसीज़ से मिली मैंने किधरे भी नहीं मिली। क्योंकि सब तो पहले जब मैं इतने आया सर ने मैंने कमिटमेंट दी कि तुम इतों आइल्स करो ताड़े अच्छे बैंड्स आएंगे। जब मैं आइल्स की तो डेफिनेटली मेरे अच्छे बैंड्स आए, तो सर की कमिटमेंट बिल्कुल ट्रू प्रूव हुई। उनके बाद जब मैं फाइल लगाना चाहता सी न्यूजीलैंड वास्ते, तो मैं सर को आया, सर ने कहा कि तुहाडा वीज़ा विद इन 10 डेज़ प्रोवाइड कर दांगा। तो जब उन्होंने फाइल लगाई, सारे डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग ही हेल्प मी। उनके बाद जब वीज़ा आया, मेरा वीज़ा विद इन 5 वर्किंग डेज़ आ गया सी, और जिधर मेरी फैमिली सब बहुत खुश होए। और आज मैं 20 सितंबर को मेरी फ्लाइट है एंड मैं बहुत खुश हाँ। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि साडी लाइफ है असी देख के करना चाहिए कि असी कित्थों अप्लाई करिए, किहड़ा इंस्टीट्यूट साडे वास्ते सही है, और मैं राय दांगा कि वैस्टर्न ओवरसीज़ सब तो बेस्ट है इहदे वास्ते।